Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. If you really want to speak advanced English, so this lecture is for you guys. In this lecture, we are going to learn 14 smart and creative ways to respond, how are you? Actually, we have been listening, we have been saying, we have been, you know, since was born. Like we have been hearing, how are you? And we have been saying, I am fine since was born, right? Actually, now it's high time to speak advanced English. In previous lecture, we covered 32 ways to ask, how are you? And in this lecture, we are going to learn 14 smart ways to respond to how are you. So let's get started. Whenever somebody asks you, how are you? आप कैसी हैं या कैसे हैं? तो अब आपने आई एम फाइन नहीं कहना, राइट, बिकॉज इट हैज़ बीन ओवर यूज्ड. तो आप इनका रिस्पॉन्स ऐसे दे सकते हैं. ये बेसिकली जो अभी मैं आप लोगों को स्लाइड पे दिखा रही हूँ, ये आप फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी, एंड फॉर्मल भी है. या आप ऑफिस बॉस हो या मैडम हो, आप उसके साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं आपसे कोई पूछता है, हाउ आर यू, यू कैन से, यू कैन रिस्पॉन्स टू इट, द बेस्ट आई कैन बी, assuming you are at your best too. Again, somebody asks you, how are you? आप कैसी हैं या कैसे हैं? You can answer. You can respond to it. I'm pretty standard right now. I've been better. I'm high quality. I'm perfectly alright. And I'm blessed. ये जो जितनी भी वेज हैं बोलने की, जितने भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनका जो सेंस निकल रहा है, इट मीन्स आई एम फाइन. बट अब आपने आई एम फाइन नहीं कहना. इनमें से जो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप ये यूज़ करें. एक्चुअली अल्टरनेटिव्स हैं ये, एक को हमने यूज़ नहीं करना. कभी आप ये कहते हैं, आई एम प्रीटी स्टैंडर्ड राइट नाउ, आई बीन बेटर, आई एम हाई क्वालिटी, आई एम परफेक्टली ऑलराइट. यू कैन यूज़ अल्टरनेटिवली. यू कैन यूज़ दीज डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्स हाउ आर यू. कोई आपसे क्या, हाउ आर यू, आई एम प्रीटी वेल, I'm quite good. I'm doing really well. Not too bad. Very well, thanks. Going great. Yeah, all right. I have never been better. जब आपका ऐसा मूड, थोड़ा सा आप ऐसा फील करें कि ठीक है, ठीक हूँ, बस सही हूँ, फीलिंग्स जब आपकी ऐसी हो ना, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं. सो फार सो गुड. हाँ, अब तक तो ठीक हूँ, सही हूँ, बिल्कुल. So far, so good. Can't complain. Means you are very satisfied. You are really happy the way you are right now. So can't complain. Better than I deserve. Could be better. I'm not having an easy time at the moment. आप ये तब यूज़ कर सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है कि आई एम नॉट हैविंग एन ईजी टाइम एट द मोमेंट. इट मीन्स कि अभी आप थोड़े से टायर्ड हैं या बिजी हैं, मीन्स नॉट कम्प्लीटली वेल. इट डजेंट मीन दैट यू आर इल, बट इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट फीलिंग 100% वेल, right? At that time you can say it. All right, so how are you? Sunshine all day long. This is one of my favorite one, I would say. Sunshine all day long. Oh, just the usual. Different day, same existence. So, yeah, I'm fine. So, good enough. I'm better on the inside than I look on the outside. Right? Okay, so these were the alternatives of I am fine in positive way. But in negative response, like you are not feeling well, either either you are not feeling well or you are feeling sad, not sad but not up to the mark. At that time you can say, or you are feeling unwell due to weather, or you have flu, you have cough, something like that, you can say, I'm feeling under the weather. When somebody asks you, how are you, and
आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेल, तो आप उस वक्त ये ना कि आई एम नॉट फाइन, यू कैन से आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मीन्स यू आर नॉट फाइन. आई एम नॉट डूइंग सो वेल, आई एम सर्वाइविंग, मीन्स इट ऑल मीन्स दैट यू आर नॉट फाइन. सेम ओल्ड, ठीक है. आई हैव अ पल्स सो आई मस्ट बी ओके. ये थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, अपने मूड को हम समझना चाहिए हमें, कि हमारा हम ठीक हों बट हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हों, हम हैप्पी ना हो. आई एम नॉट सेइंग दैट बीइंग सैड, बट यू आर नॉट फीलिंग गुड इनफ. तो हम ऐसे नहीं कहें आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप ये कह सकते हैं आई हैव अ पल्स सो आई मस्ट बी ओके. आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई फील अनवेल. आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट, आई एम सॉन्ट अंडर. इट्स बीन अ बिट ऑफ टफ डे. अगर कोई ऑल डे यानी होल डे के बाद कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, इफ समबडी आस्क यू हाउ आर यू, सो यू कैन रिस्पॉन्स दैट इट्स अ बिट ऑफ अ टफ डे. और वीक है तो आप वीक भी कह सकते हैं. सो स्लोली बट श्योरली डाइंग एक्चुअली. इट्स फ़नी वे. ये अच्छा, ये जो फ़नी होता है ना, आई ऑलवेज़ आस्क यू टू बी केयरफुल, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये आप अपने छोटों के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो बी केयरफुल. कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू. सो दिस इज़ माई फेवरेट वन, आई वुड से better than you. On a lighter note, okay, not in that way, but on lighter note, friendly we say, कोई आपसे दोस्त पूछता है how are you, so yeah, better than you, right. On a lighter note, better than before भी आप कह सकते हैं, yeah, I am alive. अब वर्क प्लेस पे कोई आपसे कुलीग, आपका दोस्त है, या वो पूछता है कि how are you feeling, overworked and underpaid. All right. So last one is that better than some, not as good as others. So hopefully ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. Hopefully अगर अच्छा लगा है, so don't forget to like it, and don't forget to subscribe to this channel as well. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एंड आई रियली वांट यू टू यूज़ दैम इन योर लाइफ, इन डेली लाइफ, राइट, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोना एनहांस योर स्पोकन इंग्लिश. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.